Good morning, good afternoon, good evening, wheresoever you're watching this video. Welcome to you all in this electrostatics class, class 7, the 7th lecture of electrostatics. In the previous class, I discussed about electric dipole. I just gave a brief introduction about electric dipole. I said two equal and opposite charges separated by a certain distance is called as electric dipole. Electric dipole moment is the product of either charge and the distance between the two charges. The direction of electric dipole is from negative to positive charge. Obviously, it's a vector quantity with SI unit, coulomb meter, and dimensional formula LAT. Today, we'll be doing electric field due to electric type. Heading is electric field due to an electric dipole. I'll be discussing four cases over here. Very first case is when electric field is to be found. When electric field is to be found at center of electric dipole. At center of electric dipole. So, according to this, I'll take two equal and opposite charges. This is minus q at A and plus q at B. The distance between the two charges is 2A. This is a center position. I'll just call this point as P over here. And I have to find out the electric field at this point. So this much distance is A and this much distance is A. That means this point is equidistant from this negative charge and also from this positive charge. This thing I discussed it with you before also. Wheresoever we have to find out the electric field, we imagine that a unit positive test charge is present over there. So here also I imagine that a unit test charge is present over here. If a unit test charge is present over here, then because of this minus q charge which is at A, it will experience an electrostatic attractive force. So electrostatic attraction will give the direction of electric field in this direction, EA. It is from right to left. Okay. At the same time, this plus q naught charge is experiencing repulsion from this plus charge. So again it will experience a repulsive force because of the charge at B, but that too now it is in the same direction because it is repelling. I repeat again. At point P, we are imagining that a unit positive test charge is present because we have found out the electric field over here. This negative charge and this positive charge, they will attract. So this positive charge will appear, it will appear as if it is going towards this side. It is being attracted. So direction of electric field EA is here. If I consider the case of B, from B side I find that this charge plus q is there. This plus q charge will repel this plus q naught charge again towards this side. So direction of electric field from A side and B side is same, and this both of them is going to add up because both of them they are along the same direction. Now let me find out the magnitude of EA. The magnitude of EA is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. I'm just calculating magnitude, so please sign I'm not considering. Q divided by R square. R square. Here R is what? A square. In case I consider the electrostatic force because of B, the magnitude again is same. 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by A square again. Okay. Now what we are going to do is we are going to add these two things. This is the simple formula of electric field which I have applied. Now what is E total? E total over here is equal to, here, I'll just take the magnitude again. It is magnitude of EA plus magnitude of EB. Since both of them they are along the same direction, when we add it becomes 1 by 4 pi epsilon naught. I have to add it again, 2 times same thing, q by A square plus q by A. Oh, I made a mistake. The mistake is that from here to here it is A, fine. This also is A. This A, okay, let me just take it once. 2A by square. And this becomes 1 by 4 pi epsilon naught 2q by A square.
2q by a square. This becomes the formula for the total electric field because of both the charges. And where's the direction? Direction is along or from B to A, or I'll just say opposite to electric dipole moment. Yes, the electric dipole moment has a direction from negative to positive charge, and here the total electric field is just exactly opposite to it. So here it is opposite to electric dipole moment. One more thing. In case you are considering, do not want to consider the magnitude, you want to consider the direction itself. So this becomes minus q, this becomes only q, but you can see both of them, they are in this direction, this becomes opposite to that direction. So again they are going to add. It will never become equal to 0. Either you take in terms of magnitude or you take magnitude and direction combined, it will become 0. But do not make this mistake that you are applying direction 2 times. Don't do it. Either you take the magnitude, then look out for the directions and then simply add or subtract. Like in case this electrostatic force was in the opposite direction, you would have simply subtracted. So the best way is to take the magnitude, check the direction, and then add or subtract. That becomes the safest way. Is this clear to everyone? Okay. Now we come to the next part. This is first case. Next case is when electric field is to be found at an axial line, at a point on an axial line. I'm writing about this. Found at a point on axial line. At a point on axial line. Axial line means like minus q charge. This is A point. This is B. And this is plus q charge over here. This is 2a, this whole thing is 2a, and I'm going to find out this electric field at this point, P point. Electric field at P point is to be calculated. Again, I'll imagine that this is a small unit test charge over here. This is a unit test charge over here. This test charge and this, they will attract or repel? Obviously, they will repel. That means the electrostatic force EB is in this direction. Now, if I want to calculate the electrostatic force because of this negative charge, this negative and this plus Q naught, they will attract each other. So the direction is EA in this direction. Both of them, they are equal. No, answer. Are they opposite? Yes, they are. Now, what is the distance of this point P from here? We calculate this distance to be R. This much distance is R. Fine. I repeat, you've got two charges minus Q and plus Q at a distance of 2a from each other. Both these charges are separated at a distance 2a from each other. I have to find out an electric field at point P, which is at a distance R from the center of the electric dipole. This much distance is R. Because of this plus Q charge, there is repulsion, so this is EB. Because of this minus Q charge, there is attraction, so this is AA. Now, what is EA and what is EB over here? First of all, what is EA? EA is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. I am taking just the magnitude, I told you before also. 1 by 4 pi epsilon naught. It becomes Q divided by R plus A whole square. Why I am saying R plus A? This is R and plus A. This whole thing is 2A. So this is A and this is A. So this becomes R plus A whole square. Now I come to EB. EB is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R minus A whole square. These two, they are in opposite directions. Which one is having higher magnitude according to you? Obviously, the one which is having less value of denominator, it is having higher value. So, EB value is more and E value is less. As a result, I can simply add these. E total becomes EB, magnitude of EB minus magnitude of EA. Why it has been done like this? Because EB is having more value, EA is having less value. Both of them, they are in the opposite direction along the same line. So, I am simply subtracting their magnitudes. It becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R minus A whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught
Q divided by R plus A whole square. 1 by 4 pi epsilon comes out. Q also comes out. It becomes 1 minus R minus A whole square minus of R plus A whole square. Q divided by 4 pi epsilon naught. It becomes, you can add this R square plus A square. I'll check R plus A whole square minus of R minus A whole square divided by R square minus A square. क्या करा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण यहाँ फाइंड आउट करा. ई ए की वैल्यू क्या हुई? 1 बाई 4 epsilon क्यू आर प्लस ए होल स्क्वायर. आर प्लस ए क्यों हुआ? क्योंकि पी पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, पर हमें तो ए से डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो आर प्लस ए हो गया. दूसरे वाले केस में बी और पी के बीच में फाइंड आउट करना था डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस आर था, पर हमें तो उतना ही चाहिए था, तो आर माइनस ए हो गया. 1 बाई 4 epsilon क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर. इन दोनों की हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स दी थी, डायरेक्शन थे वो दोनों के ऑपोजिट थे, पर अलोंग द सेम लाइन थे, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ई बी की वैल्यू देखें आप ज़्यादा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है. ई ए की वैल्यू क्या है? कम है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है. तो हम ई टोटल को क्या ले लेते हैं? ये मैग्नीट्यूड ही है. ई टोटल इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए. ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द result point on axial line. Let us rub this and write it over here. अब इसको क्या करना है? ये जो Q की वैल्यू है यहाँ पर आपकी Q की वैल्यू है E टोटल की मैग्नीट्यूड है. इसको Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करते हैं तो आता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लीज 2RA divided by R square minus A square whole square, which is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught. This becomes, everything is cancelled except for 4RA divided by R square minus A square whole square. हमने पिछली क्लास में करा था P is equal to 2Q. इस केस में हम इस चीज को सॉल्व इसको कर लेंगे और आ जाएगा 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. ये P एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन क्या आ रहा है? नेट डायरेक्शन आ रहा है EB के अलोंग. जो EB के अलोंग डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारे पास P का डायरेक्शन है. दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग P, इज अलोंग P. डायरेक्शन जो है इट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. एक और बात पूछी जा सकती है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत छोटा हो जाए इसका मतलब उसकी जो R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और A की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा? ये नीचे R4 हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो होगी आ जाएगी E फॉर स्मॉल के लिए आ जाएगी 2P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब. ये कैसे हुआ? ये R रेज़्ड पावर 4 हो गया, ये R ही था, एक कैंसिल हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. नोट इट डाउन. अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर. इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at a point on equatorial line. अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे. इक्वेटोरियल मतलब एक तरह से पेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है उसके. मैंने यहाँ ले लिया अपना माइनस क्यू चार्ज और ये ले लिया प्लस क्यू चार्ज और इस लाइन पर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. लेट मी सिलेक्ट कि मैंने इस पॉइंट पे P पॉइंट ले लिया. ये A है, ये B है. इतना डिस्टेंस, हमेशा हम जो P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस R हो गया. ये टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल का की लेंथ थी 2A,
तो ये हो गया ए, ये हो गया ए। अब ये पॉइंट यहाँ, सॉरी यहाँ ज्वाइन करा हमने और एक यहाँ ज्वाइन करा। आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वली होगा, पी और पी भी इक्वल होगा। कितने हो जाएंगे वैल्यूज की? √r² प्लस a²। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √r² प्लस a²। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्लस क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगेन आई इमेजिन दैट देयर इज अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आई इमेजिन। So this plus and this plus they will repel each other. Electrostatic force EB, यहाँ पर ये हो गया। EB की वैल्यू क्या होगी? EB की वैल्यू होगी 1/4, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r² प्लस a²। ठीक है। सिमिलरली इस तरफ को प्लस Q और माइनस Q अट्रैक्ट होंगे, तो ये इस तरफ को डायरेक्शन हो जाएगा EA का। अब EA की वैल्यू क्या हो जाएगी? EA की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिंपली, Q डिवाइडेड बाय r² प्लस a²। आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ EA और मैग्नीट्यूड ऑफ EB क्या है? इक्वल है, इक्वल। पर क्या डायरेक्शन इक्वल है? नहीं, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है। सो आई कैन नॉट सिंपली ऐड देम। देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू ऐड देम वेक्टोरियली, you know the angle between them also, you can add them vectorially. The second option is you can take the components and then you can add them. So let me take the second option. This is EB, this is angle theta, which I do not know at the moment. This is also angle theta, same equal angles because angles opposite to equal sides. This I'll draw a line like this, and this is one more component. This line is parallel to this, so this is theta. So I can say which component is theta over here? This is theta. So this becomes EA sine of, cos of theta. This component becomes EA sine of theta. Now let me check EB. This angle is theta, so I'll say this angle is also theta. I repeat, ये वाला, this angle is theta, so this angle is theta, alternate angles. This angle was theta, so I'll say this angle is also theta. Fine. Now since this angle was theta, I have taken two components. इसके component के कारण तो हमारे पास ये cos theta हो गया, ये sin theta हो गया। अभी EB है, इसके भी दो rectangular components बना देते हैं। ये हो जाएगा EB sin theta, दोबारा ये वाला जो EB का ये वाला कॉम्पोनेंट का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोबारा? EB cos ऑफ थीटा। दोबारा डायग्राम क्लियर करके बता देती हूँ। ये पूरा ये आपका ट्राइंगल ये था, ये -Q चार्ज था, ये +Q चार्ज था, यहाँ पर आपका P पॉइंट था, यहाँ पर अपने टेस्ट चार्ज इमेजिन करा, इसके कारण ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये +Q और +Q दोनों रिपेल करते हैं, तो EA का डायरेक्शन आ जाता है, EB का डायरेक्शन सॉरी आ जाता है ये वाला। अब ये -Q और +Q अट्रैक्ट करते हैं, तो EA का डायरेक्शन आ जाता है ये वाला। अब क्या है कि EA, this is theta, this is theta, I'll just resolve it into two rectangular components। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गया ये वाला, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गया। अब ये एंगल्स की बात आ रही है, क्योंकि ये थीटा ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसके कारण ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा EA cos थीटा, और ये हो गया EA sin थीटा। क्लियर? अब ये EB जो है ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब क्योंकि अब EB है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट तो ये हो गया, ये खुद EB ये वाला है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, और एक कंपोनेंट इसके साथ ही होगा जो जाएगा EB cos थीटा। ठीक है। अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? EA sin थीटा। अब देख रहे हैं जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, EA और EB को दोनों को रिजॉल्व कर दिया हमने कंपोनेंट्स में। EA sin थीटा और EA sin थीटा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसके कारण है? सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट के कारण है। पर दोनों कंपोनेंट्स को हम लेंगे, यानी E टोटल जो आएगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इस डायग्राम को मैं रब करती हूँ बाकी कैलकुलेशन के लिए।
और चीज लिखते हैं यहाँ पर कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा होगा क्या। cos थीटा तो इस ट्राइंगल में लें PAD में, इन ट्राइंगल PAD, what is this cos theta? Cos theta is equal to perpendicular base upon hypotenuse. So base here is A, hypotenuse is under root of r square plus a square. So as I discussed before only, EA and EB are resolved into two components. So EA and EB are resolved into rectangular components sin theta component cancels and only cos theta component is left. So E total is equal to 2 times EA cos theta. ये दोनों तरफ का ले लिए, EA EB दोनों सेम है तो 2EA cos theta ले सकते हैं। इसको लिखते हैं 2 times EA की वैल्यू 1/4 pi epsilon q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट का हाफ रेज़ बाय हाफ लिख सकते हैं। अब ये आ गया 2QA, व्हाट इज 2QA? P, बार बार हम बताते आ रहे हैं 2QA is equal to P, this is P. If I'm taking just the magnitude part, this is only P. P divided by 4 pi epsilon naught r square plus a square whole 3/2, ठीक है। और डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो इट इज डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू P बार। और कंडीशन लेते हैं अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई A के कंपैरिजन में, दैट इज इफ R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, देन E इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught R क्यूब। पिछले वाले केस में 2P आया था, इसमें 4 pi epsilon naught R क्यूब आया। डिफरेंस क्या है, ये वो 2 टाइम्स था, E एक्सियल ज़्यादा था, E इक्वेटोरियल उसका एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है। ये तो हमारा थर्ड हो गया। अब चलते हैं फोर्थ केस। अब एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये जनरल पॉइंट ले लिया, एनी जनरल पॉइंट, एनीथिंग। तो इस केस में क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया -q + q, जिसका डिस्टेंस आपस में क्या होगा, और एक पॉइंट P ले लिया, लेट्स से एनी जनरल पॉइंट P, और जिसका सेंटर से डायरेक्शन यहाँ पर है, ये ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे कहीं नहीं माना, इसका डिस्टेंस ये r यहाँ से सेंटर से, हमेशा डिस्टेंस सेंटर से लेते, मैंने पहले ही बताया था आपको। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, और ये सेंटर से इन्होंने डिस्टेंस ले लिया, जैसे OP ले लिया डिस्टेंस सेंटर से। अब इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकालना है। हम एक चीज़ इसमें इमेजिन कर लेते हैं, मान वैसे भी आप देखो, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता, उसका डायरेक्शन P यहाँ पर होता। लेट्स से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, ये आपस में एंगल एक थीटा बना रहे हैं, तो जो P है इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकते हैं, दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकते हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक मैं ऐसे बना देती हूँ और एक आपका इस P का एक इधर हो जाएगा। ये वाला जो
कंपोनेंट होगा इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं P2, इस साइड वाले को मान लेते हैं P1. Do not get confused this point. This is capital P. This is small p. P and P1 and P2 are the components of P. वैल्यू क्या होगी इसकी? कैप P1 की वैल्यू हो सकती है इज इक्वल टू P cos ऑफ थीटा. P2 की वैल्यू क्या होगी? P sin ऑफ थीटा. क्लियर? ओके. अब मानकर चलते हैं कि P तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, P1 जो है क्या है? कॉम्पोनेंट अलोंग ये दिस साइड हो गया, टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, थीटा एंगल ले लिया, और P2 यहाँ. अब ये P पॉइंट मैंने जर्नल पॉइंट मान लिया. कि P पॉइंट जर्नल पॉइंट मान लिया, यानी कि इसका एक कॉम्पोनेंट हो सकता है एक्सियल लाइन के अलोंग हो, और एक कॉम्पोनेंट इसका कहाँ हो सकता है? इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग हो. ठीक है. Let me consider let us consider that P is at axial is on axial line. अगर ये मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा E1 which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. एक्सियल लाइन मतलब इस P1 के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो. जब भी एक्सियल लाइन की बात होती है, मैंने तभी ये बनाया P1 और E1 एक ही लाइन में, तो इट बिकम्स P1 डिवाइडेड बाय R क्यूब. स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta, sorry 2P cos theta divided by R cube. ठीक है. Where P and E1 they are along the same line. This is along P1. Always remember this. Now, in case I say, let us consider that P is on equatorial line. तब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो जाएगा. अब ऑपोजिट तो इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब देखते हैं P2 और E2 आपस में मैंने क्या बना दिए? ऑपोजिट टू ईच अदर बना दिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर. तो E2 की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसको बस. E2 की वैल्यू हो जाएगी 1 by 4 pi epsilon naught P2 डिवाइडेड बाय R2. स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के ले रहे हैं. 1 by 4 pi epsilon naught P2 की वैल्यू लिखी हमने P sin theta divided by R cube. This is opposite to P2. ठीक है. मुझे पता है इक्वेटोरियल लाइन में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और एक्सियल में अलग. अब मेरे को चाहिए E टोटल. E1 और E2 तब देख रहे हैं आपस में क्या एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 cos ऑफ 90 डिग्री. इनकी वाला क्वेश्चन तो गया. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 by 4 pi epsilon naught 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 by 4 pi epsilon naught P sin थीटा बाय R क्यूब का होल स्क्वायर. देखते हैं क्या क्या बाहर आएगा यहाँ से. E total is equal to 1 by 4 pi epsilon naught बाहर, P बाहर, R क्यूब भी बाहर. क्या रहेगा? बहुत कम चीजें रहेंगी मेरे पास. तो यहाँ इसका स्क्वायर था तो cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इतना सबको पता है. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, बट यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा है. एक cos स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा, बाकी वाला रह जाएगा. क्या रह जाएगा देखते हैं. P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब
अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई आपकी रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट कहाँ होगा? रिजल्टेंट ऐसे होगा। अब ये किस एंगल के साथ अलाइन है? कोई कहता है कि इस एंगल के साथ लो, कोई कहता है इस एंगल के साथ लो। जिस एंगल के साथ अलाइन होता है, लेट्स से आप हम मान लेते हैं इवन के साथ अलाइन है, इवन के साथ अलाइन है, ठीक है। तो अब ये थीटा में कोई और एंगल लेते हैं अल्फा। तो ये तो आपका हो गया ई टोटल, ई टोटल, ई टोटल आपका ये है। तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो इससे ले लेते हैं tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा ना इसके, ई टोटल कौन सा हो गया? अरे मैंने अल्फा ले लिया, ये वाला हमारा कॉस वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E2 बाय E2 बाय E1, ठीक है। E2 बाई E1 डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आया। 2p cos थीटा, ये सारा डिवाइड कर कर आ गया मेरे पास E2 बाई E1, इट बिकम्स tan थीटा बाय tan थीटा बाय 2, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। इस केस में हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया P, ये वाला P पॉइंट यहाँ पर ले लिया। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल, हमें इसका पता ही नहीं है कहाँ है पॉइंट, ठीक है। पर आपको एक बात बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट AB के अलॉन्ग ये होता है, P होता है। अब इस P के दो कॉम्पोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए। ये मान लिया कि एंगल जो P OP जो है, जो डिस्टेंस R है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसके दो कॉम्पोनेंट डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा P1, ये P2। अब देख रहे हैं थीटा इसके साथ है, तो ये P1 cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? P1 sin थीटा। अब हमने दो चीज़ें इमेजिन करी। हम माना कि जो P पॉइंट है, हो सकता अगर ये एक्सियल पे है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इक्वेटोरियल पर है तो क्या होगा। अगर एक्सियल पे होता है तो हमारा फॉर्मूला ये होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए 1/4πε0 2p/r। P की वैल्यू एग्जैक्ट निकाली, P1 की निकाल दी 2π cos थीटा, और हमारे पास ये हो। सेकेंड में हमने मान लिया इक्वेटोरियल पर है, तो 1/4πε0 P2/r3। P2 की वैल्यू क्या है? P sin θ/r3। इन दोनों जो वैल्यूज आ गई, इनको हमें ऐड करना है। अब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में थे तो ऐड तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलोंग द इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक एक होता है ऑपोजिट द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैंने जो ये वाला कंपोनेंट लिया था, ये इस डायरेक्शन में था, अलोंग P1 था, और ये वाला क्या था? ऑपोजिट टू P2, क्योंकि P2 आपका इधर है तो E2 इस तरफ था। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का था। फाइनली वी गॉट दिस आंसर। देन व्हाट इज द एंगल विद व्हिच इट इज अलाइंड विद E1? व्हाट इज द एंगल विद व्हिच इट इज अलाइंड विद E1? तो मैंने tan अल्फा ले लिया। tan अल्फा क्या हो जाएगा? E2 sin अल्फा बाय E1 cos अल्फा, ये हो जाएगा। अब E2 और E1 की ये जो वैल्यूज हैं वो आपने डाल दी, E2 और E1 की वैल्यू डाली तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। कैसे करें? अच्छा, इसको ये tan अल्फा आया, इसे ले लेते हैं, E टोटल तो हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू E1, नो नॉट E1, E2 cos अल्फा डिवाइडेड बाय E1, क्या लिख रहे हैं? E2 सॉरी sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। tan अल्फा E टोटल sin अल्फा डिवाइडेड बाय E टोटल cos अल्फा, ये तो tan अल्फा हो गया। अब E टोटल की इसकी वैल्यूज देखनी है कि ये क्या है। व्हाट इज E टोटल sin अल्फा? E टोटल sin अल्फा इज नथिंग बट E2। व्हाट इज दिस? दिस इज E1। ये क्या आएगा? tan ऑफ अल्फा जाएगा, tan ऑफ थीटा। तो बस राइट कर देंगे इसमें क्या वैल्यू, ये आया कैसे? tan अल्फा का मैं ले रही हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू E टोटल साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय E टोटल कॉस ऑफ अल्फा। व्हाट इज E टोटल साइन ऑफ अल्फा? दिस इज E2। व्हाट इज E टोटल कॉस ऑफ अल्फा? दिस इज E। नाउ दिस इज tan अल्फा, आई कैन अंडरस्टैंड, E अल्फा हो गया। E2 की वैल्यू क्या है? E2 की वैल्यू है 1/4πε0 P sin थीटा बाय R क्यूब।
इसकी वैल्यू क्या है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट पी क्या हो गया कॉस थीटा बाय आर क्यूब। सब चीज़ें कट गई, यहाँ पर 2p कॉस थीटा है, क्या आ गया tan थीटा बाय tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 रिलेशन निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू पता है तो अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस coming on this. We have heard about a rotational force. What is it called? It is called as torque. Now we will find out the torque acting on an electric dipole when placed in uniform electric field. Heading is torque acting on electric dipole when placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखें। लेट्स सी आई एम कीपिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज -q एंड दिस इज +q, इट इज अलाइंड इन एन एंगल थीटा विद इट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ही होता है कि अब ये प्लस प्लस प्लस, ये आपकी साइड हो गई या माइनस साइड हो गई, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यू कीपिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी लाइक दिस, सो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक। जो आपने ऐसे रख दिया तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। इस साइड पे जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ क्यू इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस फोर्स को हम लिख सकते हैं, जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको लिख सकते हैं क्यू ई, क्यू ई। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा एफ, इसको भी लिख सकते हैं क्यू ई। अब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है? मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए होगा कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट इस तरफ होगी, नेगेटिव प्लेट इस तरफ होगी। यहाँ पर आपका चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि इधर को अट्रैक्शन होगी इसके लिए। अब ये वाला जो प्लस वाला चार्ज है इस तरफ को एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। सो देयर आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स opposite charges and they are experiencing force in two opposite directions। ये एक ही नेट फोर्स इस पे जो एक्ट कर रहा है वो क्या है? जीरो। F टोटल इज इक्वल टू, इसको माइनस मान लें, माइनस क्यू डायरेक्शन से मानो या मैग्नीट्यूड, दिस बिकम्स जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। बट दीज टू फोर्सेज, द नेट फोर्स इज जीरो, these two equal and opposite forces, they are not acting along the same line, they are not acting along the same line, so they will form a torque. For example, suppose I have a duster, if I am pushing these two things like this, ऐसे पुश कर रहे हैं, तब तो ये हिलेगी नहीं अपनी जगह से, फोर्स नेट फोर्स जीरो है, मैंने ऐसे अप्लाई करा फोर्स, इसको इधर को पुश करें और इसको इधर को पुल, what will happen? It will start rotating. Same thing comes over here, because of these two equal and opposite charges, equal and opposite forces acting on the electric dipole, the electric dipole experience net force zero, but it will experience a torque. What is the torque equal to? Torque is equal to, the general formula is either force into perpendicular distance between the poles, perpendicular distance between the two forces। आइदर फोर्स कितना है? QE, कोई दिक्कत नहीं तो फाइंड आउट कर लेंगे, आइदर फोर्स इज QE, हमने पहले लिख दिया। नाउ दिस होल थिंग इज 2A, आई वांट टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये हो जाता है, तो ये कितना है? 2A sin थीटा, को दिख रहा है ये 2A है, sin थीटा क्या हो गया इसमें? sin थीटा ये है, ये बेस है इसकी, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that means sin theta is equal to this I'll call it as C, BC divided by 2A. So what is BC? BC is equal to 2A sin of theta.
So I'll just write this is 2a sin of theta. अब वापस इसी चीज पर आते हैं. What is P? P is equal to Q into 2a. तो ये Q into 2a क्या हो गया? ये P हो गया. तो क्या P E sin theta. Torque is equal to P E sin theta. अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. P भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है. आपको पता होगा अगर तीन वेक्टर क्वांटिटी में जो रिजल्टेंट होता है इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स. एग्जांपल सपोज ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका ये पी आई हो गया. ये वाई उसमें है तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पर है तो क्या हो जाएगा? किस जगह पर हो जाएगा? जे कॉम्पोनेंट हो जाएगा. आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो टॉर्क के कॉम्पोनेंट हो जाएगा. समझ रहे हो आप? अगर ये तीनों चीजें ऐसे हैं कि जो P है वो एक्स एक्सिस पर है, E जो है वो वाई एक्सिस पर है, E जो है वाई एक्सिस पर है, तो जो टॉर्क होगा इट विल बी कमिंग आउट. ठीक है, प्लस अब इसमें केसेस कर लेते हैं. ये तो क्लियर हो गया आपको. इसमें केस कर देते हैं. तीन केसेस हो सकते हैं. कि अगर थीटा इज जीरो, केस वन इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो टॉर्क की वैल्यू भी जीरो हो जाती है. सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल चीज़. ठीक है. केस टू होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम पीई. और केस थ्री जो है वो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, यानी कि एंटी पैरेलल हो जाए, पी इधर को और ई इधर को, दिस इज द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम. थीटा की वैल्यू जीरो होगी बट मोस्ट अनस्टेबल चीज हो जाती है. ठीक है. अब लास्ट चीज करते हैं. लास्ट टॉपिक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके. लास्ट कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी stored in electric dipole. Potential energy stored in electric dipole. इसका मतलब क्या है? जैसे कोई रबर बैंड होता है, उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरह से स्टोर करते हैं. स्प्रिंग होते हैं, उसको दबा कर रखते हैं, स्ट्रेच कर रखते हैं. हम एक तरह से उसमें वर्क डन कर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हैं. सेम थिंग हम ऐसे कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर वर्क कर उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. यू नो दैट टॉर्क फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin theta. This we know. Now, in case I give an extra rotation to it by d theta. Okay. जैसे वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पर जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक तरह का रोटेशनल फोर्स है. इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो एंगल के टर्म्स में होगी. तो इफ दिस इज रोटेटेड, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ d theta is given to it, if displacement of d theta is given to it, what type of displacement is angle? If angular displacement of d theta is given, work done, small work done is equal to toy d theta. What is toy? PE sin theta d theta. What is total work done? Total work done means कि थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक एंगल पे रोटेशन करी, PE sin थीटा d थीटा. ठीक है. अब PE sin थीटा d थीटा को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है cos थीटा. sin थीटा को माइनस cos थीटा. So work done is equal to minus PE cos theta. Work done is equal to minus PE cos theta, limit from theta 1 to theta 2.
which becomes minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. अब एक assumption करते हैं, if theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta, that means work done is equal to minus PE cos of theta. Cos 90 degree 0 हो जाता है. Finally W is equal to cos theta मतलब कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डॉट E. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड. हम जो भी वर्क कर रहे हैं दैट इज स्टोर्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. आई रिपीट, हमारा टॉर्क था PE साइन थीटा. अब इसको हम एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा की देते हैं, तो वी आर डूइंग सम वर्क ऑन इट. व्हेन वी डू वर्क ऑन इट, it becomes dw is equal to tau d theta. Total work becomes integration of this thing from a particular angle to the other angle, theta 1 to theta 2. We have integrated this thing, sin theta becomes minus cos theta, so it becomes PE cos theta. We are putting in the limits theta 1 and theta 2, ऊपर अपर लिमिट theta 2 और लोअर लिमिट theta 1. फिर assumption करते हैं कि let theta 1 is equal to 90 degree, theta 2 is equal to theta, so it becomes minus PE cos theta. This becomes the total work done. This work done is stored as potential energy. तो जो भी वर्क डन आया आपका वो स्टोर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे लास्ट टाइम 3 केसेस थे, यहाँ पर भी 3 केसेस वही आएंगे. आई एम जस्ट रबिंग दिस क्वेश्चन. क्या आ रहे हैं, केस 1, केस 2, केस 3. केस 1 इज थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा पिछले बार में थीटा इज इक्वल टू 0 दिया था, उसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ 0 डिग्री, विच बिकम्स माइनस PE. यहाँ पर मिनिमम वर्क डन हुआ है, क्योंकि ये कौन सा है, ये स्टेबल केस था. स्टेबल यहाँ वर्क डन जो है माइनस PE है, सबसे कम वर्क डन हो रहा है यहाँ पर. एंड इज लाइक दिस. केस 2 when theta is equal to 90 degree, that means W is equal to minus PE cos of 90 degree, that means it is equal to 0. यानी कि इस केस में वर्क डन क्या है, 0 है. इसमें वर्क डन क्या था, नेगेटिव था. दैट्स व्हाई इट वाज द मोस्ट स्टेबल थिंग. यानी कि इट वाज द मोस्ट स्टेबल थिंग. थीटा इज इक्वल टू 0. हमने उसमें टॉर्क में भी करा, टॉर्क में अब थीटा 0 था, तो उस केस में आपका जो टॉर्क था वो 0 आया था. अब यहाँ पर क्या है, थीटा 0 है, आपका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है. इन दोनों को कोरिलेट करके रखना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए वर्क डन कितना होना चाहिए और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क कितना होना चाहिए. टॉर्क था वहाँ पर 0 और वर्क डन कितना है, माइनस PE, या पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE. और सिमिलरली जब मैक्सिमम आपका टॉर्क था तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया. थर्ड वाले केस में, केस 3 में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वाज द मोस्ट अनस्टेबल थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ 180 डिग्री, सो इट बिकम्स प्लस PE. दैट मीन्स मैक्सिमम वर्क हैज टू बी डन इन दिस केस और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड. ओके, तो थीटा 0, टॉर्क was 0, but here work done is minus PE. When theta was 90 degree, torque was maximum, work done here is equal to 0. If theta is 180 degree, torque was again 0, but it was unstable, but here work done is equal to maximum PE. Okay, we'll continue with the numericals in the next class. Okay, goodbye.